মোক আৰু তাঁত বৈ মতা মানে তাঁত বৈ বুলি দুই এজনে মোক এৰিও কৰিছিলে, তাতেও কৰিছিলে। মতা মানুহে বোলে তাঁত বৈ নেকি, তেওঁ মাইকীহে বোলে মানে নিন্দনীয় কৰিছিলে। असम चाय के बागानों और ब्रह्मपुत्र की लहरों से कहीं आगे बसता है। इन खामोश जंगलों और सुदूर गांवों में आज एक नई सुगबुगाहट है। संघर्षों में गुम रही दास्तानों को अब एक मजबूत सहारा मिला है। अपनी माटी की महक को सहेजे हुए ये नए कल की ओर बढ़ते पक्के कदम हैं। दो 2024 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री बापुकन पाइंग जोरहाट असम से विलुप्तप्राय मिर्जिम वस्त्र परंपरा को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु। मिसिंग जनजाति के इन करघों को गौर से सुने। ये सिर्फ सूत नहीं, पीढ़ियों की पहचान बुनते हैं। एक दौर था जब इस बेजोड़ कारीगरी का कोई मोल नहीं था, लेकिन आज राष्ट्रीय सम्मान और सरकारी अनुदान ने इस कला को मानो पंख दे दिए हैं। पक्की छतों के नीचे बिना फिक्र के एक आम बुनकर अब पूरी तरह आत्मनिर्भर है। मैं এটা আপোনাৰ 2025 চনৰ 9 ডিসেম্বৰত এটা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হ'লো। এই নেশ্যনেল এৱাৰ্ডটো পালোঁ মই এটা বস্ত্ৰ বনাইছিলোঁ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল, যিটো নেকি আমাৰ মিচিং শব্দত গাদু বুলি কয়। 1989ত মই যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ, 91ত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি মই টেক্সটাইল পঢ়িবলৈ মন গ'ল। টেক্সটাইল পঢ়িলোঁ, 2 বছৰীয়া কোৰ্ছ, ডিপ্ল'মা ল'লোঁ। ডিপ্ল'মা লৈ দুৰ্ভাগ্যৰ চাকৰি নাপালোঁ কাৰণে মই চাকৰি নাপালোঁ বুলি মই মনটো এৰি দিয়া নাছিলোঁ। মই তাঁতৰ কামতেই কৰি আছিলোঁ। তাঁতৰ শাল তেনেকৈ কৰি দুই এটা কাপোৰ তেনেকৈ বিক্ৰী কৰি কৰি মোৰ পৰিয়ালটো চলাই আছিলোঁ। মই এইটো বহুত বুলিয়ে ভাবিছোঁ। ডিচি আৰু MLA আণ্ডাৰত 3 লাখ টকা এটা চেংচন দিলে। সেই চেংচনটো পাই পেলাই মই সুখী আৰু মই এইটো সৎ কামতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। স্থায়ীকৈ মই এটা ঘৰ বনাইছোঁ, 6খন শালৰ কেপাচিটিৰে মই এটা ঘৰ বনাইছোঁ। মোৰ এৱাৰ্ডটো পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যথেষ্ট চেঞ্জ আৰু জনসাধাৰণে উৎসাহ দিবলৈ ধৰিলে আৰু সেইজন যে মতা হ'লেও যে এনেকুৱা কাম এটা কৰিছে সেইটো মানে এৰি হৈছে, মানে মানুহৰ আগত মানে জনাজাত হৈছে। আৰু এৱাৰ্ডটো পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ধৰক মোক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এৱাৰ্ডটো এটা তামৰ পত্ৰ দিলে। তাৰপিছত লগতে আমাক 2 লাখ টকা দিলে। 2 লাখ টকাটো আমি জীৱনত দেখা নাছিলোঁ। এই 2 লাখ টকাটো মই সৎ কামতে খৰচ কৰিলোঁ। মই ভাবি আছিলোঁ মই ৰাষ্ট্ৰপতি এৱাৰ্ডৰ পৰা যি পাওঁ মই তাঁতৰ কামত খৰচ কৰিম, ভাল কামত খৰচ কৰিম। ধৰক আপোনাৰ তাৰ প্ৰায় 20 দিনমানৰ পিছতে এজন মুম্বাইৰ পৰা আহিলে ডক্টৰ এগৰাকী মানে আহিলে। আহি পেলাই মোৰ মানে মিউজিয়ামটো চালে। মই এপিচ বনাই থৈছিলোঁ চেম্পলৰ কাৰণে, চবেই চাবলৈ আহে, সেইটো কাৰণে মই দেখাবলৈ বনাই থৈছিলোঁ। চালে, চাই পেলাই মানে তেখেতে বহুত পচন্দ কৰিলে। 2 পিচ লগে লগে অৰ্ডাৰ কৰিলে। এৰী ষ্টল 10 পিচ অৰ্ডাৰ দিলে। তাৰপিছত মিউজিয়াম 2 পিচ অৰ্ডাৰ দিলে লগে লগে মোক মানে আপোনাৰ টকা 10,000 এডভান্স দি থৈ গ'ল। আমাক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড দি পেলাই আমাক সম্বৰ্ধনা জনালে, হাত মিলালে, ধৰক এনেকুৱা কাম কৰি যাওক বুলি আমাক উপদেশ দিলে। আৰু মই আশা কৰিছিলোঁ যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ছাৰে মোক কিবা এটা অনুদান ব্যক্তিগতভাৱে দিব নেকি বা কিবা এটা ক'ব নেকি তেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাতে সামৰণি মাৰি থৈ দিলে। মোক কৈছিলে, কথা দিছিলে মই মাজুলীত যাম। মোক কৈছে পায়েংনা মাজুলীত যাম, আপোনাক লগ ধৰিম, মই স্পেচিয়েল কথা পাতিম।
बड़ा वाला मास्क है ये हमारा ट्रेडिशनल आसामीज़ में जो भावना और रास महोत्सव ये पहने लोग आदमी लोग ये पहनने वाले ये एक्टिंग कर रहा है। ब्रह्मपुत्र के बीच बसे माजुली में मिट्टी और बांस के इन मुखौटों में किरदार सांस लेते हैं। कभी ये मुखाशिल्प सिर्फ गांव के नाटकों तक सिमटा था। प्रथम आसलते मुखाशिल्प बुली कले श्रीमंत शंकरदेव गुरुजना आमार गुरुजनाय जेतिया सिंहजात्रा भावना आरम्भ करिছিলে तेतियाय तात मुखाशिल्प तेও प्रदर्शन करिছিলে आरो यार आविष्कार मूलते हल आमार गुरुजन श्रीमंत शंकरदेव गुरुजनाय এই মুখাশিল্প আমাৰ মাজত দি থৈ গৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই হয়তো বহুজনে এই শিল্প ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু মাজুলী বুলি ক'লে বিশেষকৈ সামগুৰি সত্ৰ মুখাশিল্পৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু সেই সত্ৰই বহুত যুগ ধৰি পেলাই এই শিল্প চৰ্চা কৰি আহিছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰাই আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ এই কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী দেৱৰ তত্ত্বাৱধানত শিকাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে তাৰ পিছত বিভিন্নজনৰ ওচৰত শিকিছোঁ আৰু সেই কাম কৰি আহিছোঁ। 2015 চনত সংগীত নাটক একাডেমি 14-15 মানে ডিসেম্বৰ আৰু জানুৱাৰীত সংগীত নাটক একাডেমি 45 দিনীয়া এটা কৰ্মশালা আছিলে আমাৰ কমলাবাৰীত আৰু যেহেতু মই নৃত্যৰ লগত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগত জড়িত আৰু বিশাৰদ পাছ কৰিছোঁ মই গতিকে সেই ভাওনা কৰ্মশালা কৰিবলৈ যাওঁতেনে মই মুখাশিল্প শিকাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে তেতিয়া হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰৰ ওচৰত শিকিছিলোঁ। पर आज संगीत नाटक अकादमी और सरकारी सहयोग ने इन कलाकारों का हाथ थाम लिया है। वर्कशॉप्स और मेलों से मिली पहचान ने इस पुरानी विरासत को एक जीता जागता रोजगार बना दिया है। गवर्नमेंटर फाলৰ পৰা তেনেকৈ আমাক वर्कशॉप দিছে वर्कशॉपতো লৈ পেলাই আমি সুবিধা পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন জেগাত যিখিনি মেলা আয়োজন কৰিছে সৰস মেলাই হওক বা স্বদেশী মেলাই হওক সেই মেলাসমূহত আচলতে আমাক সুবিধা দিছে যাতে আমি এখন ষ্টল দিব পাৰোঁ তাত আমাৰ কোনো পইচা বা তেনেকৈ ষ্টলৰ কাৰণে পইচা নলয় আৰু তাৰ উপৰিও আমাক লোন দিয়ে যিখিনি মানে সুদ বহুত কম তেনেকৈ লোন দিয়ে। कुछ मास्क तो बहुत बड़े-बड़े जैसे ये वाला भी पहना जा सकता है। हाँ परफॉर्मेंस करने के लिए। मतलब 100 साल से ज़्यादा हो गया इस पहाड़ से उतरे हो इस गांव में रहे। पहाड़िया कार्बी फ्लेंस के नहीं है पहाड़िया कार्बी बोलते हम लोग का नागा को पहाड़िया में अंदर पड़ता है। जैसे मंगोलिया से है क्योंकि हम लोग किताब में भी पढ़ा था और हमारे पुरखों ने भी बताया था कि हम लोग का मंगोलिया ट्राइब का से आया हुआ है। 6 छात्र घर ही था ऐसे आते आते अभी 70 घर के हो गया पॉपुलेशन अभी 500 से अब हो गया। रंगों की इस दुनिया से दूर असम के घने जंगलों की ओर चलें तो जिंदगी एक अलग करवट लेती दिखती है। कार्बी जैसी जनजातियां जिनके लिए बुनियादी सहूलियतें कभी दूर का सपना थीं, आज अपने ही आंगन में पक्की दीवारें और सीधा विकास उतरते देख रही हैं। क्या होता है सर हम लोग जैसे यहाँ पे तितलियाँ उड़ रहे हैं तो हम लोग ये रोज का है यहाँ का है मतलब हम लोग उसमें कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे ये लोग सब जब आप लोग ये देख रहे हैं ना सर ये निशानी जितना है ये रात को आते हैं गंडर यहीं पे रहते हैं वो लोग रात को आते हैं सुबह वो लोग चला जाते हैं मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। चीड़ा देखने से आगे पहले तो उसको चिड़िया को भगा देता है मार देता है लेकिन अभी उसको बोलता है कोई आएगा तो उसको डाल देता है उसको प्यार हो गया
इसी प्यार से देखिए ना, कोई पशु पक्षी नहीं होने से नहीं चलेगा। अभी काजीरंगा बात छोड़िए, पशु पक्षी के लिए कितना दूर दूर से आता है। कोई आसाम के बात छोड़िए, इंडिया से बात छोड़िए, इंडिया से बाहर से भी आते हैं इसको देखने के लिए। देखिए सर, यहाँ के हम लोग जैसे कि गांव के लोग को ना एटीएम पता था, ना ऑनलाइन पता था, ना किसी को बैंक लेना देना था। जो अंगूठा छाप है, उन लोग भी आज बैंक के खाता में उनका नाम से आज पैसा जमा हो रहा है। पहले तो नहीं था सर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मोदी जी को हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वो हमारे लिए क्या बोलूँ सर, वो हमारे लिए अन्नदाता भी बोल सकते हैं सर। आज जो राशन मिल रहा है, कोविड के समय से लेकर आज तक जितना राशन मिल रहा है, पहले की सरकार में जितना डेवलप नहीं हुआ, आज हमारे दूसरों की बात छोड़िए सर, हमारे गांव की बात बोल रहा हूँ। लोगों को भी जो अभी IY PM योजना का जो घर मिल रहा है, उससे तो बहुत बढ़िया से बन रहा है। और ये लोगों का पेंशन भी मिल रहा है। पानी मिलता है, कोई लाइट का सुविधा मिलता है, वो नारियल का सब सुविधा, उसे क्या हम कहूँ। तो परिवर्तन ही है, हम लोग भी वैसे के परिवर्तन हो गया। मेरा बच्चा पढ़ा, अभी तो एक पैसा भी बिना खर्चा में पढ़ाने के सब सुविधा मोदी ने किया। इन जंगलों की हवा का रुख अब वाकई बदल रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन लोगों ने इस नए विकास को गले तो लगाया है, पर अपने जंगल और अपनी परंपरा को छोड़े बिना अपनी जड़ों से गहराई तक जुड़े रहकर आसमान छूने की ये दास्तां आज के बदलते असम की सबसे खूबसूरत तस्वीर है।